Have you ever slipped in so-called anti-slip tiles? All matte tiles are not anti-skid. हो सकता है कई बार आप भी फिसलते फिसलते बचे हों, ठीक है, हालांकि वो टाइल आपने मैट फिनिश में ही लगाया था। आपने एक और बात आजकल सुनी होगी जो मार्केटिंग में कुछ कंपनीज यूज कर रही हैं, R9, R10, R11 रेटिंग फॉर एंटी स्लिप। और R9 सुन के आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे 10 में से 9 नंबर मिल गए। असल में ये एक जर्मन स्टैंडर्ड है जिसमें R9 से शुरुआत होती है। एक और बड़ा शॉकिंग ट्रुथ है, मुझे एंटी स्लिप टाइल चाहिए और फिर एक टाइल जो हमको दिखता है, पसंद तो आ रहा होता है, हम उसको छूते हैं, पॉलिश्ड है या जो भी ग्लॉसी है, हम बोलते हैं नहीं ये एंटी स्किड नहीं है, ये हमको नहीं चलेगा। फिर वो सेल्समैन दूसरा एक टाइल आपके सामने रख, आप उसको भी हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई, जो ग्लॉसी टाइल था उससे तो ज्यादा इसमें ग्रिप मिल रही है। और साथ में सेल्समैन आपको बोल भी रहा है कि यही लगाते हैं, आजकल यही चलता है और ये एंटी स्लिप टाइल है, बाथरूम के लिए तो यही यूज होता है। अब ये एक शौक है और ये एक मिथ है, ऑल मैट टाइल्स आर नॉट एंटी स्किड। क्यों? In this podcast, today we are exposing the anti slip myth. I will tell you each and everything which will help you to make informed decisions and buy the right anti slip tiles. Namaste and welcome to On the Floor. I'm Dinesh Vyas. Stay with me till the end. This could save your next project. In this podcast, you will discover four very important facts about anti-slip tiles and few more things. What are these? First and foremost fact is that matte finish tiles are not always anti-slip tiles. Second, what slip resistance rating of your tile would be good for your flooring? Third, if someone says R10 rating, what does it mean? And what about R11? And fourth, apart from this R rating, are there some other standards? Is there some other way to know the slip resistance of your tiles? Matte finish does not mean slip resistant. The slip resistance in wet or contaminated condition, as I said, it goes down. You cannot ascertain the slip resistance of a tile in dry condition. Where are you slipping? You are slipping in bathroom or kitchen. So checking in dry state, it doesn't help much. Then some of you may flip through the brochure given by the company. Few branded companies, they have technical specification. And you will find two things there, COF or DCOF, coefficient of friction or dynamic coefficient of friction. Most probably it will be written more than zero point 0.4 and you think it is sufficient. Wrong, particularly in the wet conditions. It doesn't mean that these tiles you can put in your bathroom or kitchen or any floor which is prone to slip, which can become slippery. So from today, remember, if you are very conscious, very concerned about slipping, then this bare hand test, it doesn't mean much. Look for genuinely anti-slip tiles. My second point was, what rating for anti-slip tile is good enough for your slippery floor? See, let me tell you about this R9, R10 business. This has come from a German standard, DIN 51130 and DIN 51097. These are the two German standard tests which are conducted on a sloping ramp. So generally for your house, I will suggest R10 rating for these spaces which are prone to slip. And if you are very cautious, then maybe R11. Now here's the problem. And you know how much fake things happen in the market. If someone has put the label of R10, then how do you really trust it? And such fake things are not uncommon. There are more than 750 tile manufacturers, chota, bada, har size ka. They all, try to sell what is in demand. The consumer has always been on the receiving end because आप खुद तो टेस्ट कर ही नहीं सकते ना। आपको मैं खास बात बताता हूँ, 800 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज है हमारे यहाँ। हार्डली एक या दो फैक्ट्री में आपको ये टेस्ट करने की सुविधा है। आई नो वन सच कंपनी, आई हैव नॉट सीन एनी सेकंड फैक्ट्री। इफ समवन हैज पुट रिसेंटली, आई एम नॉट अवेयर, बट इट इज नॉट देयर। तो फिर कैसे टेस्टिंग हो रही है, फिर कैसे रेटिंग हो रही है? क्योंकि वो हमने अपना टाइल किसी लैब में भेजा। दे आर वन और टू इंडिपेंडेंट लैब इन इंडिया जो कि ये टेस्टिंग करते हैं। अब देखिए मजे की बात, देखिए हर बैच में ये रेटिंग चेंज हो सकती है। तो मान लीजिए कि मैंने 1 जनवरी 2025 को कोई एक टाइल टेस्टिंग के लिए भेजा
या 10 टाइल भेजे, जो भी है एक बैच के। आज अगर मैं मई या जून मंथ में बैठा हूँ, उस बैच में क्या निकल रहा है? हाउ कैन आई रियली से दैट माय टाइल आर R10? एंड दैट्स द बिग इश्यू। तो आप याद रखिए कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जनरली आपको R10 या R11 जो रेटिंग है, उस रेटिंग का टाइल आपको लेना है। एक्सट्रीम केसेस में आप R12 या R13 टाइल भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। R10 का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि R9 से R13 तक की जो एंटी स्लिप रेटिंग है, ये जर्मन टेस्ट DIN 51130 इसके बेसिस पर है। इस टेस्ट में क्या होता है कि एक स्लोपिंग रैंप होता है और इसका स्लोप चेंज किया जा सकता है। ठीक है? इसके ऊपर एक टेस्टर चलता है, स्पेसिफाइड वेट का आदमी होता है, उसने एक स्पेसिफाइड टाइप के शूज पहने होते हैं, ठीक है, और इसको स्पेसिफाइड मटेरियल से, ऑयल से उसको कंटेमिनेट किया जाता है। ये बंदा सारे सेफ्टी गियर्स होते हैं इसके पास, हार्नेस लगी होती है और साइड में रेल भी है, और जैसे ही आपको मालूम है कि जैसे ही हम स्लिप होने वाले होते हैं, तो हमें पता चल जाता है, तो ये पकड़ सकता है, यानी कि बंदा पूरा सेफ है इस टेस्ट में। ये आगे और पीछे चलता है, फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप बैकवर्ड, और जितने ज्यादा एंगल तक ये सेफली चल सकता है, उतनी ज्यादा उसकी रेटिंग होती है। R10 का मतलब होता है कि जो रैम्प का एंगल है बिटवीन 10 and 19 डिग्री, ही इज नॉट स्लिपिंग, ही इज सेफ। तो उस स्टाइल की रेटिंग होती है R10। R11 में ये एंगल 19 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास होता है। और इस तरह से R12 और R13 के भी स्पेसिफिकेशंस हैं। एक और जर्मन टेस्ट है, स्टैंडर्ड है 51097। उसमें जो कंटेमिनेशन है, उसमें सोपी वाटर का इस्तेमाल होता है, और वो बंदा बेयर फीट चलता है, नंगे पैर, नो शूज। तो फीट आर नॉट शॉर्ड एंड द कंटेमिनेशन इज सोपी वाटर। उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन निकलता है वो A, B या C होता है। अभी तक मैंने नहीं देखा कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर ABC की बात कर रहा है, बट अगर आपको ऐसे टाइल मिलते हैं जेन्यूनली सर्टिफाइड, तो फिर वो मिनिमम A होना चाहिए, और जहां ज्यादा कंसर्न है उसकी रेटिंग B होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रेटिंग और ये सर्टिफिकेशन जेन्यून होना चाहिए। आज जो मैं टेस्ट कर रहा हूं यहां पर बैठे किसी लैब में, वो जरूरी नहीं है कि मेरा टाइल वही टाइल मैं बना रहा हूं जब साल भर बाद, 2 महीने बाद, तो वो बैच का चेंज हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि ये टेस्टिंग इन सीटू हो, यानी कि उसी फैक्ट्री में हो। मैंने कुछ जगह ऐसे टाइल देखे हैं जिसमें उन्होंने R10 करके सेल किया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन से either the test was wrong or the tile has changed while the test was right, बट वो कब हुआ, किस स्टाइल के ऊपर हुआ, और वो किस स्टाइल पे बोल रहे हैं, वो चेंज हो सकता है। तो R10 से आपका काम चलेगा, R11 इज सेफ, बट इट मस्ट बी जेन्यूनली दैट। चौथा पॉइंट मैंने आपको कहा था कि क्या इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। एक है पेंडुलम टेस्ट। कई सारी कंट्रीज इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और मुझे भी लगता है कि ये काफी ठीक ठाक टेस्ट। ये टेस्ट कोई अभी लिख नहीं रहा। फैसिलिटीज जरूर मैंने देखी हैं, जहां मैंने ये रैम टेस्ट होते हुए देखे हैं, वहां ये भी टेस्ट होते हुए देखे हैं, लेकिन किसी की ब्रोशर में अभी कोई क्लेम नहीं कर रहा है। टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत कम है, खासकर इन सीटू टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर मैं समराइज करूं, मेन दो ही बातें हैं। पहला ये है कि जो बेयर हैंड से आप मैट छू के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये टाइल एंटी स्लिप है, ये बात सही नहीं है, दिस इज अ मिथ। और दूसरा, जेन्युइन R10 या R11 टाइल्स आप बाथरूम जैसी जगह में, जहां पे भी गीला रहता है, जहां पे भी स्लिपिंग के चांसेस है, आप लगाएं। तीसरी एक और बात है, स्लिपिंग की जो घटना है, इट इज नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन टाइल, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ यू वॉक, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इज द कंटेमिनेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेमिनेशन इज देयर। टाइल का जो रोल है, वो आप इन जर्मन टेस्ट के बेसिस पे A या B कैटेगरी एज पर 51097 या R10 एंड R11 से आपका जो स्लिप रेजिस्टेंस डिजायर्ड है, जितना टाइल कर सकता है, उतना आपको मिल सकता है।
आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ओटीएफ पे हमारा एफर्ट है कि फ्लोरिंग, बिल्डिंग मटेरियल और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जितनी भी ऑथेंटिक और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है हम आप तक पहुंचाएं। प्लीज सब्सक्राइब, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी, please share these podcasts with other people in your network who can also be benefited. I'll be very thankful to you. Thank you very much. See you soon in the next podcast with some new topic or new question.